Hi friends, welcome back to Civil Stab. This is a previous year question series of environment module. यहाँ पे हम कवर करेंगे 1995 से 2018 तक लास्ट 25 years के जो भी important environment related questions पूछे गए हैं उनको. So start करते हैं अपने biodiversity and related concepts के third part से. So friends, as you know, we have divided biodiversity under three sections. First is biodiversity needs and threats. Second is important flora and fauna, and third is conservation efforts and protected area networks. तो आज हम अपने third part से continue करेंगे, that is conservation efforts and protected area networks. The previous two parts have been covered in previous videos. If you haven't watched them, do watch them and brush up your concepts and revise these questions. So let's start with the first question for today. So the first question for today, which one of the following is not a site for an in situ method of conservation of flora? This was asked in prelims of 2011 and the options were A. Biosphere Reserve, B. Botanical Garden, C. National Park, D. Wildlife Sanctuary. So friends, to answer this question, you need to know what are the various conservation methods of conserving a flora and fauna and what do we mean by in situ methods and the other method, that is the ex situ method. So let's study them. So what do we mean by biodiversity conservation? Biodiversity conservation means conserving both the variety and the number of flora and fauna in an area और एन इकोसिस्टम. यानी हम नंबर और वैरायटी दोनों को कंजर्व कर रहे हैं किसकी, जो भी जीन्स हैं, जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी. तो दिस कैन बी बेसिकली डन इन टू वेज. फर्स्ट इज द एक्स सिटू मेथड्स एंड फर्स्ट इज द इन सिटू मेथड्स. इन सिटू मेथड्स आर दोज मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन जहां पे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाता है उसके नेचुरल हैबिटेट या उसके नेचुरल एनवायरनमेंट में. Ex situ methods are those methods where human interactions are involved in conservation process. यानी कि जब हम उसको वो human made environment में अलग से conserve करते हैं rather than their natural environment, तो उसे कहते हैं ex situ methods. So let us see what are the various in situ and ex situ methods. So firstly, the in situ conservation methods. In situ, as the word suggests, that is conserving the species in its original habitat or the environment. इसका बेनिफिट ये होता है कि जो स्पीशीज के साथ साथ उसका इकोसिस्टम भी कंजर्व हो जाता है. इसके क्या बेनिफिट्स है कि स्पीशीज की जो सर्विसेज है, बायोडाइवर्सिटी की सर्विसेज है, वो तो हमें मिल ही रही है, साथ साथ उसके इकोसिस्टम जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था, लाइक रेगुलेटिंग सर्विसेज, कल्चरल सर्विसेज, प्रोविजनिंग सर्विसेज, वो भी हमें मिलती रहेंगी. सो इन सिटू इज द मोस्ट सुटेबल मेथड. The various in situ methods that are being implemented are marking the areas as biodiversity reserves, national parks, wildlife sanctuaries, tiger reserves, etc. So we will be studying all these terms in detail later in the video. Second method is ex situ conservation method. Ex situ conservation means conserving the biodiversity outside its natural habitats. यानी जब भी हम human interferences के through किसी species को externally conserve कर रहे हैं, उसे हम कहेंगे ex situ conservation method. So the most common method that is being implemented is by maintaining gene banks. Gene banks is a way जिसमें क्या होता है कि जो स्पीशीज के जेनेटिक्स को हम कंजर्व कर लेते हैं. तो क्या होता है कि अगर कोई नेचुरल कैलामिटी वगैरह के कारण जहां पे कोई एंडेमिक स्पीशीज है, अगर वो कंप्लीटली वाइप आउट भी हो जाती है, तो उसके जीन्स के थ्रू हम उसको रिवाइव कर पाएंगे. क्यों? क्योंकि उसका जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए डाइवर्सिटी है, वो अभी हमने स्टोर करके रखी है इन द फॉर्म ऑफ सीड बैंक्स फॉर प्लांट्स, स्पर्म एंड ओवा इन द केस ऑफ ऑर्गेनिजम्स, फील्ड बैंक्स. तो ये सब मेथड है ऑफ स्टोरिंग द जेनेटिक्स ऑफ अ प्लांट और एनिमल. Second method of fertilization is conservation is in vitro fertilization methods. तो यानी हम किसी टेस्ट ट्यूब में हम जो है कंजर्व कर रहे हैं, स्पीशीज की प्रोडक्शन कर रहे हैं, एक्सटर्नल कैप्टिव ब्रीडिंग से उसको कंजर्व कर रहे हैं, तो वो होंगे अदर मेथड ऑफ कंजर्वेशन. The other most commonly observed ex situ conservation method is by collecting the living organisms for in zoos or aquariums. So you might have, while you are children, you must have visited some zoos or aquariums to see the plants and animals. So that is the most common ex situ conservation method. The other common method is by conserving the species for the research and public awareness purposes. Like in botanical gardens, various plants are grown so that their properties can be studied and further research can be conducted. So all these are the methods of conservation, whether in situ or the ex situ methods. So let us now try to answer this question. Which one of the following is not a site for in situ method of conservation of flora? This was asked in 2011. A. Biosphere Reserve, B. Botanical Garden, C. National Park, and D. Wildlife Sanctuary. So by now you know that the Biosphere Reserve, National Park, and Wildlife Sanctuary are all methods of in situ conservation where the habitat is conserved with the species. So the answer here would be B, that is Botanical Garden, जहाँ पे हम plants को grow करते हैं for research purposes.
सो फ्रेंड्स, हमने जब इन सीटू कंजर्वेशन पढ़ा था तो हमने डिफरेंट टाइप्स के इन सीटू मेथड्स पढ़े थे, लाइक नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो ये सब क्या थे? इन सीटू मेथड्स, यानी एक ऐसा एरिया जहाँ पे हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्व कर रहे हैं इसके नेचुरल एनवायरनमेंट में। तो इन सभी को हम कह सकते हैं कि ये क्या है? एक प्रोटेक्टेड एरिया, यानी एक ऐसा डेजिग्नेटेड, रेगुलेटेड एंड मैनेज्ड एरिया, जोग्राफिकली डिफाइंड है, जो जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया गया है। अब ये जो प्रोटेक्टेड एरिया है ये बहुत तरीके के हो सकते हैं। कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट हैबिटेट्स लाइक मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज और टेरेस्ट्रियल प्रोटेक्टेड एरियाज, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शंस। तो जब सबसे पहले प्रोटेक्टेड एरियाज मार्क करना स्टार्ट हुए थे, जब सबसे पहले इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के अवेयरनेस बढ़ी थी, तब क्या माना जाता था? तब माना यह जाता था कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने का, प्रिजर्व करने का बेस्ट वे है कि ह्यूमंस की इंटरेक्शन सबसे कम कर दी जाए या फिर एक्सक्लूड ही कर दी जाए। तो जितनी कम ह्यूमन इंटरेक्शन होगी उतना ज्यादा, जितनी कम ह्यूमन इंटरेक्शन होगी उतना स्टेटस को मेंटेन रहेगा, स्पीशीज को उसकी नॉर्मल ग्रोथ के लिए रिसोर्सेज मिलते रहेंगे, और क्या होगा कि बेटर कंजर्वेशन हो पाएगी। सो इसलिए हमने फेंसेस लगाना शुरू करे, ह्यूमंस की उसकी ग्रेजिंग एक्टिविटीज, जो भी लाइफ स्टॉक एक्टिविटीज वो फॉरेस्ट में कर रहे थे उनको बंद कर दिया, और ताकि कि जो एनिमल्स हैं, जो वहाँ के प्लांट्स हैं, वो नेचुरली रिप्रोड्यूस कर सके, उनकी ग्रोथ हो सके। सो इस बेसिस पे हमने कुछ एरियाज को डेजिग्नेट किया, लाइक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स। तो ये क्या थे? कंप्लीटली प्रोटेक्टेड एरियाज जहाँ पे ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत ही कम या फिर जीरो अलाउड थी। बट विद टाइम इट वाज फेल्ट कि ह्यूमंस की इंटरेक्शन भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि ह्यूमंस भी उस एनवायरनमेंट को कुछ दे रहे थे। जब ह्यूमंस और इकोसिस्टम इकट्ठे इवॉल्व हो रहे थे, तो इसलिए जरूरी है कि ह्यूमंस की सर्वाइवल भी इन इकोसिस्टम्स पे डिपेंडेंट है, और उनकी ग्रोथ के लिए दोनों का ही एक दूसरे के साथ इंटरेक्शंस इंपॉर्टेंट है। सो इस बेसिस पे ये माना गया कि जो लोकल प्रैक्टिसेस थी, जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस थी कंजर्वेशन की, दोज वर मोर सूटेबल for conservation rather than completely saying no to human interactions. So limited amount of interaction is necessary for better conservation of biodiversity and sustainable development. So इस basis पे हमने क्या किया? हमने ऐसी practices को allow किया जो कि traditionally biodiversity को conserve कर रही थी, like by designating areas like biosphere reserves, sacred groves। तो इनमें क्या हुआ था? जो ट्राइब्स वहां पे रह रही थी, जो ट्रेडिशनल लोग वहां पे रह रहे थे, उनकी कुछ प्रैक्टिसेस के कारण इकोसिस्टम की नेचुरल ग्रोथ बेटर हो पाई। So let us now study what are the various types of protected areas. सो फ्रेंड्स, प्रोटेक्टेड एरियाज जो हैं नेशनली इंटरनेशनली दोनों ही मार्क किए गए हैं। इंटरनेशनल एफर्ट्स के अंदर वेरियस ट्रीटीज या वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस ने कुछ जो बहुत ही ज्यादा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स एरियाज हैं, जो कि बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उन एरियाज को प्रोटेक्टेड एरियाज मार्क किया है। ऐसे कुछ एफर्ट्स लिए गए थे IUCN के टाइम पे, या रामसर कन्वेंशन के अंडर, या बायोस्फीयर रिजर्व्स जो मार्क की गई थी बाय यूनेस्को। सिमिलरली नेशनल लेवल पे भी इंडिया ने कुछ ऐसे एफर्ट्स लिए हैं ताकि वो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सके, लाइक अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और अदर एक्ट्स जो कि कुछ स्पीशीज स्पेसिफिक एरियाज को डेजिग्नेट करती हैं। सो लेट अस नाउ फर्स्ट स्टार्ट स्टडिंग बाय इंटरनेशनल एफर्ट्स दैट हैव बीन टेकन इन दिस area. So let us now start with the international efforts. The first major effort in this area was taken by IUCN, that is the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. It divided the protected areas under 6 categories on the basis of nature of the area and on the basis of protection given to it. So the first category was strict natural reserve or the wilderness area. This is the most strictly protected area in order to preserve its geological and geomorphical features. It has least amount of human interaction. Only amount of interaction is allowed in terms of scientific study or monitoring systems. तो इसके अलावा यहाँ पे कोई भी interaction allowed नहीं है. The second category is of national parks. This national park is different from what national parks has been designated under Wildlife Protection Act. So do remind this that the IUCN category 2 national park is a bit different from Wildlife Protection Act national park, though the name is same, but there is a slight difference between the amount of rigidity that is followed. So in this category, this is less strictly protected than the category 1. In this, there is a lenient human visitation that is allowed in terms of tourism or for supporting infrastructure purposes. Now the next category, that is the category 3 of natural features or natural monument. So in this, the natural features which are developed by human interactions or cultural interferences are being preserved. The fourth category is of habitat or species management area. In this area, this is basically smaller in size as compared to the other 3 categories, but here
it is a restricted amount of area that is protected, or a specific species that is protected. Like it can be related to tiger reserves, it can be related to elephant reserves. A particular species is conserved under this category. Now the fifth category, this is related to basically conserving the landscape or seascape of the area. Yani we will be conserving the whole environment of that area. This could be for tourism or recreational purposes. The sixth and the last category, this category has the maximum human involvement in it for the sustainable use of natural resources. However, it does not allow any kind of industrial activity. So these were the 6 categories of IUCN protected areas. The next international effort was undertaken by UNESCO. So UNESCO has designated some areas as biodiversity reserves. These areas are basically for the conservation of wildlife, plant and animal resources, including the traditional life of the tribal living in that area. So here the major difference is what we studied from protected areas is the involvement of traditional life of tribals. So we are not only protecting the wildlife and plants and animals of the area, but also the tribals and their lifestyle. So this more or less is corresponds to the IUCN category 5, where we protect the seascape or the landscape of area, because a landscape is not only maintained by the environmental features, but also the cultural environment is included in that landscape. So landscape involves both the human interactions as well as the natural factors like abiotic factors of sun, rainfall, temperature, everything. Now in this, UNESCO has basically designated areas as biosphere reserves. For this, UNESCO has started its program known as Man and Biosphere Program, which was launched in 1971. Under it, it designates biosphere reserves, and the network of this is known as World Network of Biosphere Reserves. All over the world, if we see, there are 686 sites spread over 122 countries. The Director General of UNESCO designates these sites after the annual year consultations in under the ICC, that is the International Coordination Committee. This sites also include some of the transboundary sites, which is international sites. यानी ऐसा नहीं है कि एक site सिर्फ एक country में restricted होगी. It is possible that a biosphere reserve is spread over 2 or 3 countries. So such sites are also there. So now let us look at the structure and design of a biosphere reserve. A biosphere reserve basically consists of 3 interrelated zones. The first zone is the core zone or the natural zone. This is the most undisturbed area if we look in terms of human interference, and has maximum amount of endemism and the density of species. So this is generally kept free from all human interactions. The second is the manipulation or buffer zone. So as the name suggests, it is basically a buffer zone between the core zone and the outer zone that allows maximum human interaction. So in this zone, you can see there are a lot of human activities in terms of grazing, fishing, tourism, recreation. They are permitted, but they are regulated in the sense that you cannot go on indiscriminate fishing or hunting. There is a regulation and there is a restricted amount of these activities that are allowed. Plus, there are a lot of research and educational activities that are encouraged in this area. The third is the outer zone or the outer buffer zone or the transition zone. So this zone is generally not delimited in the sense that it is not fixed. This includes all amounts of settlements, managed forest and crop area for intensive recreation, and all amount of economic activities. If we see in terms of collection of wood, timber, wood, non-timber products is allowed in this section. So this item also shows how these 3 zones are arranged. The inner zone is the core zone, then is the buffer zone and the transition zone. You can also see the activities that are allowed in these areas. The inner zone is the only zone where the least number of activities allowed and only monitoring is allowed. Whereas if we look at the transition area, it has the maximum human interaction and has tourism, recreation, settlement facilities available in it. But if we look at buffer zone, it has all kinds of activities which include human as well as species related activities. So let us now look at the 18 biosphere reserves in India. Whenever you study a biosphere reserve, there are 2 main important facts that you need to keep in mind. The first is its location and the second is its key fauna species. So in case a biosphere reserve, whenever you study a biosphere, you need to study its location and its fauna species. Plus, you also need to look at that if this fauna species is an endangered species or a IUCN declared species, you also need to remember that.
So let us now study these species. The first is the Nilgiri Biosphere Reserve. This was the first biosphere reserve that was designated in India. It is spread across the three states of Western Ghats, that is the Tamil Nadu, Kerala and Karnataka, and consists of Nilgiri Tahar and lion-tailed macaque. The second biosphere reserve is Nanda Devi Biosphere Reserve. This is in Uttarakhand. Here you can see that there is no major fauna species if we look in terms, but it consists of species like snow leopard, tiger. So these are the two major species that can be found here. However, there is no designated species in this area, so we have left it blank. The next is the Nokrek Biosphere Reserve, that is in Meghalaya. It consists of red panda. The next reserve is Gulf of Mannar, which consists of sea cow or dugong and is spread across the Park State or Tamil Nadu. Next is Sundarbans. This is in West Bengal, which consists of Royal Bengal tiger. The next is Manas, which consists of golden langur and red panda. The next is Great Nicobar Reserve. This consists of saltwater crocodile. The next is Simlipal Biosphere Reserve, which is in Odisha and consists of species like gaur, Royal Bengal tiger and wild elephant. The next reserve is Dibru-Sakhova, that is in Assam and consists of golden langur. The next reserve is Dihang Dibang. This is in Arunachal Pradesh. So the two names look similar, like Dibru-Sakhova and Dihang Dibang, but these are in different states. So do remember them. The next is Panchmadi Biosphere Reserve, which is in MP and consists of giant squirrel and flying squirrel. The next is the Kanchenjunga Biosphere Reserve, which is in Sikkim and consists of snow leopard and red panda. This is also a UNESCO heritage site. The next is the Agastya Malai Biosphere Reserve, which is spread across Kerala and Tamil Nadu and consists of Nilgiri Tahar and elephants. The next is the Achnakar Amarkantak Hills, which is spread across Chhattisgarh and Madhya Pradesh. That is basically the Maikala Hill region. So you also need to remember, if there is a major geographical hill or peak in this region, you also need to remember that. The next is the Great Run of Kutch, that is spread across Gujarat and consists of Indian wilderness. The next is the Cold Desert, that is in Himachal Pradesh, the Ladakh region, which consists of snow leopard. The next is the Seshachalam Hills, that is in Andhra Pradesh. And the last biosphere reserve is Panna Biosphere Reserve in Madhya Pradesh. This also consists of species like tiger, chital, chinkara, and sambar and sloth bear. So these are the major 18 biosphere reserves that have been designated. The last reserve that was designated in India was in 2011, that is the Panna Biosphere Reserve. So friends, अभी हमने देखा था कि इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, बट इन 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स में मैप का जो प्रोग्राम है यूनेस्को का, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स का, उसमें से इस 18 में से सिर्फ 11 ही ऐसी साइट्स हैं जो इस प्रोग्राम में इंक्लूड करी गई हैं. 17 बायोस्फीयर रिजर्व्स आर जस्ट द डोमेस्टिक रिजर्व्स, उनको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन अभी नहीं मिली है. सो विच आर दीज 11 बायोस्फीयर रिजर्व्स? फर्स्ट इज नंदा देवी, Kanchenjunga, Nokrek, Sundarban, Simlipal, Achnakar Amarkantak, Panchmadi, Nilgiri, Gulf of Mannar, Great Nicobar and Agastya Malai. Agastya Malai is the last and the latest that biosphere reserves that has been included in this map program. The next major sites or protected areas, if we look in terms of international effort, is under the Ramsar Convention. So what is first Ramsar Convention? Ramsar Convention is basically an international treaty under which wetlands are conserved and sustained. So what are wetlands? Wetlands, according to this convention, is a area which includes regions like lakes and rivers, swamps and marshes, wet grasslands, peats, oases, estuaries, deltas. So all kind of marine environment, semi-terrestrial environment is included under this wetlands. So this was signed on 2nd Feb 1971, which is now celebrated every year as World Wetland Day. The major thing about Ramsar Convention is it's the wise use concept. This is very important because this was also asked in 2018 mains. What is the wise use concept under Ramsar Convention? So wise use concept is basically a concept which is under this, the wetlands are conserved on the theory that the ecological character needs to maintain with the sustainable development. So human interactions and its sustenance is also important along with the ecological character of the environment. Every year the Ramsar Convention, on the basis of this Ramsar Convention, there is a conference of parties that is held every 3 years. The last such conference was held in Dubai in 2018 and the next would be held in 2021. In terms of number of sites, the maximum number of sites are in UK, that is 170, and in terms of area, it is Bolivia that has the maximum wetlands.
If we consider the case of India, it has 26 sites and Gujarat has the maximum wetland area. So what is the criteria of Ramsar sites? The Ramsar sites are basically designated on the criteria that if the area has a rare or unique wetland environment, or it has an endangered species. So these are the two major criteria. You can look at the other criteria which are listed here. So friends, let us now see the Ramsar sites in India. India में हमने अभी पढ़ा था कि 26 Ramsar sites हैं. But before we can see this 26 Ramsar sites, it is important to look at the another important feature of Ramsar Convention, that is the Montreux Record. तो Montreux Record में वो wetland sites included होती हैं जो कि अभी degrade हो रहे हैं यहाँ पे या जहाँ पे थ्रेटन होने का चांसेस है, यानी ऐसी साइट्स जो ड्यू टू ह्यूमन इंटरफेरेंस या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट या पोल्यूशन के कारण जिनका इकोलॉजिकल कैरेक्टर चेंज हो गया है या चेंज हो सकता है नियर फ्यूचर में, तो वो होती हैं मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड की साइट्स. इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में 2 मॉन्ट्रेक्स साइट्स अभी हैं. वो कौन कौन सी हैं? क्योलाडो नेशनल पार्क एंड लोकटक लेक. तो ये जो दोनों साइट्स हैं ये अभी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का पार्ट है. लेकिन एक और साइट थी जो पहले मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का पार्ट थी, अब नहीं है. वो कौन सी है? चिलिका लेक. यहाँ पे इतना अच्छा कंजर्वेशन एफर्ट्स दिखाए गए both by government and the people that this site is no longer in the list of Montreux record and is being successfully removed from it. अब now let us study the various Ramsar sites in India. फ्रेंड्स, जब भी आप किसी भी प्रोटेक्टेड एरिया को पढ़ते हैं तो आपको दो चीजों का ध्यान रखना है कि उस साइट की लोकेशन क्या है प्लस कि वहां की मेन स्पीशीज क्या है. अगर वो कोई स्पीशीज ऐसी स्पीशीज है जो कि एक इंडेंजर्ड स्पीशीज है या एक इंडेमिक स्पीशीज है तो स्पेशली आपको उस स्पीशीज का जरूर ध्यान रखना है. लेकिन अगर वहां पे बहुत सारी ऐसी स्पीशीज मिलती है सो यू कैन इग्नोर दैट. सो लेट अस नाउ स्टार्ट स्टडिंग दीज साइट्स. जब भी आप इन साइट्स को पढ़े तो जनरली स्टेट वाइज पढ़े. दिस विल हेल्प यू रिमेंबर दीज साइट्स, प्लस यू कैन ऑल्सो क्रिएट सम निमोनिक और अ शॉर्टकट टू रिमेंबर दीज साइट्स. सो सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करते हैं. जम्मू कश्मीर में 4 मेन वेटलैंड साइट्स हैं. कौन कौन सी? वूलर लेक, हुकेरा वेटलैंड, सुरिंसर मानसर एंड सोमोरीरी. तो ये जो 4 वेटलैंड साइट्स हैं ये जम्मू कश्मीर के अंदर आती हैं. इसमें से जो वूलर लेक है दैट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स इन इंडिया. और सोमोरीरी की बात करें, दिस इज अ बेसिकली सॉल्ट वाटर लेक वेटलैंड. सो द वेटलैंड्स कैन बी फ्रेश वाटर लेक्स एज वेल एज सॉल्ट वाटर लेक्स. अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की. हिमाचल प्रदेश में 3 वेटलैंड साइट्स हैं, पोंग डैम, चंद्रताल एंड रेणुका वेटलैंड. तो अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जो रेणुका वेटलैंड है इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट नेचुरल लेक्स इन हिमाचल प्रदेश. नेक्स्ट हम बात करते हैं पंजाब की. पंजाब में 3 मेन वेटलैंड साइट्स हैं, कंजली वेटलैंड, हरीके लेक एंड दी रोपर. तो ये जो 3 है ये पंजाब की वेटलैंड साइट्स हैं. इसमें से आपको ये याद रखना है कि जो हरीके वेटलैंड साइट है वो बनी है कॉन्फ्लुएंस ऑफ 2 रिवर्स दैट इज दी सतलुज रिवर एंड ब्यास रिवर. सो फ्रेंड्स, अगर कोई साइट ऐसी है जहाँ पे बहुत ही कोई स्पेशल ज्योग्राफिकल फीचर है, वहां पे कोई स्पेशल हिल है, कोई स्पेशल पीक है, तो वो भी आपको पता होनी चाहिए. नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं राजस्थान की तरफ. राजस्थान में 2 मेन वेटलैंड साइट्स हैं. कौन कौन सी? सांबर लेक और क्योलाडो नेशनल पार्क. सांबर लेक जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है इंडिया का. और क्योलाडो नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो दिस वन ऑफ द मेन बर्ड सेंचुरीज इन इंडिया. यहाँ की मेन जो यहाँ पे बहुत सारी विंटर हाइबरनेशन स्पीशीज आती है लाइक साइबेरियन क्रेन, जो कि एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज भी है. नेक्स्ट साइट की जो हम बात करने हैं वो है नल सरोवर बर्ड सेंचुरी. तो ये कहाँ पे है? गुजरात में. नेक्स्ट साइट जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सी है? भोज वेटलैंड्स. अब भोज वेटलैंड्स के बारे में जो आपको चीज पता होनी चाहिए वो ये कि ये एक आर्टिफिशियल मैनमेड रिजर्वॉयर है. जो अभी तक हमने बाकी रिजर्वॉयर्स की बात करी थी वो जनरली कौन से थे? वो नेचुरल साइट्स थी. लेकिन जो भोज वेटलैंड है इट इज एन आर्टिफिशियल मैनमेड रिजर्वॉयर which is based on 2 lakes, that is the भोजतल wetland and the lower lake of भोपाल. तो ये भोपाल में एक साइट है जो कि आर्टिफिशियल मैनमेड रिजर्वॉयर है. उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में कौन सा है? नरोरा रीजन जो है अपर गंगा रिवर का, ये भी एक इंपॉर्टेंट वेटलैंड साइट है. इसके बाद हम नॉर्थ ईस्ट में चलते हैं. नॉर्थ ईस्ट में कौन सी इंपॉर्टेंट वेटलैंड साइट है? असम की बात करें तो वहां पे एक इंपॉर्टेंट लेक है जिसे कहते हैं दीपोर बील. बील को असामीज में लेक होता है इसका मतलब. तो ये एक इंपॉर्टेंट वेटलैंड साइट है. सेकेंड हम पढ़ चुके हैं लोकटक लेक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है. यहाँ पे फ्लोटिंग वेजिटेशन होती है फुमडीज की. दिस इज द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ द इंडिया. प्लस दिस ऑल्सो कंटेन्स एन इंपॉर्टेंट इंडेमिक स्पीशीज दैट इज द संगाई डेयर और द डांसिंग डियर, जो कि एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज है.
नेक्स्ट हम जो बात करते हैं वो है रुद्र सागर की। तो बाय नेम दिस साउथ समथिंग लाइक अ नॉर्थ इंडियन नेम, अ हिंदी नेम। तो आपको अगर आप गेस करेंगे तो आपको लगेगा कि ये किसी एक नॉर्थ इंडियन स्टेट में होगा, बट रॉन्ग, दिस इज अ नॉर्थ ईस्टर्न वेटलैंड साइट, दिस इज रुद्र सागर इन त्रिपुरा। नेक्स्ट हम ईस्टर्न स्टेट्स की तरफ चलते हैं। ईस्टर्न स्टेट्स की अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है वेस्ट बंगाल में ईस्ट कैलकाटा वेटलैंड्स। दिस वेटलैंड्स बेसिकली कंप्राइजेस ऑफ अ स्मॉल पार्ट ऑफ सुंदरबन रीजन्स। तो अगर हम सुंदरबन एज अ होल की बात करें तो वो एक रामसर साइट नहीं है, लेकिन उसका जो पार्ट है ईस्ट कैलकाटा वेटलैंड्स वो है एक रामसर साइट। नेक्स्ट हम चलते हैं उड़ीसा की तरफ। उड़ीसा में दो मेन वेटलैंड साइट्स हैं, फर्स्ट इज द चिलिका लेक एंड द सेकंड इज भीतरकनिका मैंग्रोव्स। भीतरकनिका जो मैंग्रोव्स हैं, दिस इज बेसिकली फॉर्म्ड ऑन दी कॉन्फ्लुएंस ऑफ मेनी रिवर्स लाइक गाहिर माता, ऋषिकुल्या रिवर, देवी रिवर। यहाँ पे ऑलिव रिडले टर्टल्स की नेस्टिंग के लिए ये साइट बहुत ज्यादा फेमस है। उसके बाद हम बात करते हैं चिलिका लेक की। दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट लगून्स ऑफ इंडिया, लगून लेक्स ऑफ द इंडिया, तो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। Plus, this was the first Ramsar site to be declared in India. So this is the double importance of Chilika Lake. उसके बाद हम बात करते हैं कोलेरू लेक की। दिस इज लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ आंध्र प्रदेश। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं तमिलनाडु की, जिसमें एक इंपॉर्टेंट साइट है वो है पॉइंट कैलिमेर। दिस इज ऑल्सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज वेल एज अ बर्ड सेंचुरी, सो दिस साइट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। लास्ट हम बात करते हैं केरला की, जहाँ पे तीन मेन साइट्स है, वेम्बनाड वेटलैंड, सेशमकोटा लेक एंड अष्टमुडी वेटलैंड। ये जो तीनों साइट्स हैं, दीज पासेस थ्रू द नेशनल वाटरवे 3, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। Plus, you need to remember that the Vembanad wetland is one of the largest Ramsar wetland sites in India, and the Ashtamudi wetland contains the purest form of the water in India. So, ये जो तीन wetlands हैं, ये बहुत ही important है हमारे लिए. These were the total 26 wetlands in India. तो अभी तक जो भी हमने इंटरनेशनल एफर्ट्स पढ़े वो किस रिगार्डिंग थे, वो एक कंप्लीट एक एरिया को कंजर्व करने के रिगार्डिंग थे। उसमें कोई हम एक स्पीशीज को टारगेट नहीं कर रहे थे, हम पूरे के पूरे इकोसिस्टम को टारगेट कर रहे थे। बट अब हम जो एफर्ट पढ़ने जा रहे हैं वो एक स्पीशीज स्पेसिफिक एफर्ट है। यहाँ पे हम बात करेंगे एलिफेंट कंजर्वेशन एफर्ट्स की। सबसे इस रिगार्ड में जो सबसे मेन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है वो कौन सा है, मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स या फिर माइक प्रोग्राम। दिस वाज स्टार्टेड अंडर साइट्स ट्रीटी इन 2003 इन एशिया। तो साउथ एशिया में क्या हुआ था कि क्योंकि एलिफेंट्स की इलीगल किलिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो इस रिगार्डिंग एक डेटाबेस बनाने के लिए और सारी कंट्रीज को इकट्ठा करने के लिए तो ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। इस प्रोग्राम के अंदर रेगुलरली जो डेटा है रिलेटेड टू इलीगल किलिंग्स या क्या क्या बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इवॉल्व हुई हैं, उसके रिगार्डिंग जो भी डेटा है वो रेगुलरली मंथली बेसिस पे कलेक्ट होता है और दिल्ली में सबमिट होता है। जो इसमें मोस्टली साउथ एशियन कंट्रीज ही इन्वॉल्व हैं। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में कुछ माइक साइट्स जो आपको पता होनी चाहिए वो कौन कौन सी हैं। असम में दो माइक साइट्स हैं, चिरांग रिपू एंड धांगपाट की। इन वेस्ट बंगाल इट इज ईस्टर्न दोआर्स, अरुणाचल प्रदेश में दियोमाली, मेघालय में गारो हिल्स, उड़ीसा में मयूरभंज, कर्नाटका में मैसूर, तमिलनाडु में नीलगिरी हिल्स, उत्तराखंड में शिवालिक हिल्स और केरला में वायनाड हिल्स। तो ये जो इन स्टेट्स की स्पेसिफिक माइक साइट्स हैं ये आपको पता होनी चाहिए। और and the other important thing that you should remember is कि माइक साइट्स आर डिफरेंट फ्रॉम एलिफेंट रिजर्व्स। जो हम एलिफेंट रिजर्व्स हम पढ़ते हैं, न्यूज में रहती है अक्सर, जैसे कि टाइगर रिजर्व्स होती हैं, एलिफेंट रिजर्व्स होती हैं, वो बहुत ही डिफरेंट है माइक साइट से। क्यों? क्योंकि माइक साइट्स जो है वो एक इंटरनेशनल ट्रीटी के अंडर है, बट जो एलिफेंट रिजर्व्स है वो एक डिफरेंट प्रोग्राम के अंदर है, प्रोजेक्ट एलिफेंट, जो कि 1992 में स्टार्ट हुआ था। सो डू रिमेंबर दैट माइक साइट्स आर डिफरेंट फ्रॉम एलिफेंट रिजर्व्स। अगर आपको कभी भी दिया जाता है कि माइक साइट्स आर क्रिएटेड अंडर प्रोजेक्ट एलिफेंट, सो दैट वुड बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट. This mic sites were created basically under a program known as MIC, which was started under sites. सेकेंड एफर्ट जो स्टार्ट किया गया था एलिफेंट कंजर्वेशन को रिलेटेड, वो कौन सा था, E8 कंट्रीज को डेजिग्नेट करने का। तो इसमें क्या होता है कि जो E8 कंट्रीज हैं वो रेगुलरली मीट करती हैं टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल ऑन एफर्ट्स रिलेटेड टू एलिफेंट कंजर्वेशन। तो इन E8 कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, इनमें वो कंट्रीज आती हैं जहाँ पे एलिफेंट की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, विच इंक्लूड्स इंडिया, बोत्सवाना, कॉन्गो, थाईलैंड, इंडोनेशिया, कीनिया, श्रीलंका एंड तंजानिया। तो ये जो 8 मेन कंट्रीज हैं ये E8 कंट्रीज कहलाती हैं, और इन्होंने रिसेंटली एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, दैट इज E5050 फोरम। तो इसमें क्या होती है, जो एलिफेंट्स के कंजर्वेशन में जो भी कंट्रीज का इंपॉर्टेंस है, उन 50 कंट्रीज के जो है उनकी कंटिन्यूस सिटिंग होती है, मीटिंग्स होती हैं, तो वहां वो डिसाइड करते हैं कि एलिफेंट कंजर्वेशन का बेस्ट मैनेजमेंट मेथड क्या है। सो ये है दो मेन एफर्ट्स एलिफेंट कंजर्वेशन एफर्ट्स को रिलेटेड।
So let us now try to answer some questions that are related to international efforts. The first question is related to Ramsar Convention. It says India is a party to Ramsar Convention and has declared many areas as Ramsar sites. Which of the following statements best describe as to how we should maintain these sites in the context of this convention? This was asked in prelims 2010. A. Keep all the sites completely inaccessible to man so that they will not be exploited. यानी सारी sites को हमें human interaction से free रखना चाहिए. Second is conserve the sites through ecosystem approach and permit tourism and recreation only. Third is conserve all the sites through ecosystem approach without any exploitation with specific criteria and specific period of each site. Fourth is conserve all the sites through ecosystem approach and allow the simultaneous sustainable use. तो अभी हमने पढ़ा था जो रामसर कन्वेंशन है वो बेस्ड है किसके ऊपर? वाइज यूज कंसेप्ट के ऊपर, जो कि कहता है कि हमें इकोसिस्टम अप्रोच के साथ साथ सस्टेनेबल मैनेजमेंट करनी है, सस्टेनेबल यूज करना है साइट्स का. सो द आंसर वुड बी डी. The next question for today: if a wetland of international importance is brought under Montreux record, what does it imply? This was asked in prelims 2014. A. Changes in ecological character have occurred, are occurring or are likely to occur in wetland as a result of human interference. Second, country in which wetland is located should enact a law to prohibit any human activity within 5 kilometers from the edge of wetland. C. The survival of wetland depends upon the cultural practices and tradition of certain communities and they should not be destroyed. Fourth, it is given a status of World Heritage Site. तो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड अभी हमने पढ़ा था, वो साइट्स इंक्लूड करती हैं वेटलैंड की जो कि थ्रेट फेस कर रही हैं ड्यू टू ह्यूमन इंटरफेरेंस. तो आंसर होगा ए. Out of all the biosphere reserves in India, few have been recognized on World Network by UNESCO. Which one of the following is not one of them? तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया कि कौन सी ऐसी साइट है जो इंक्लूडेड नहीं है. This was asked in prelims 2008. The options were A. Gulf of Mannar, B. Kanchenjunga, C. Nanda Devi, and D. Seshachalam. So the three options, that is the Gulf of Mannar, Kanchenjunga, and Nanda Devi, are part of the World Network of Biosphere Reserves, but Seshachalam is not included in this. So the answer would be D. The next question: which one of the following is not a biosphere reserve? This was asked in 2005 and in 1995. So कौन सी इनमें से biosphere reserve नहीं है? Agastyamalai, Annamalai, Nilgiri, and Panchmadi. So Annamalai is not a biosphere reserve. It is basically a peak, important peak that is there, but it is not a biosphere reserve. So answer would be B. So with this, we have covered the first part of protected areas, that is the internationally recognized protected areas. Now we will start the nationally recognized protected areas. इसको हम दो parts में cover करेंगे. The first, the Wildlife Protection Act included protected areas, and the other would be other protected areas. So सबसे पहले वो प्रोटेक्टेड एरियाज जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 का पार्ट है. इस एक्ट के अंदर बेसिकली दो बॉडीज भी बनाई गई हैं ताकि इन प्रोटेक्टेड एरियाज को गवर्न कर सके, रेगुलेट कर सके. वो कौन कौन सी है? नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, स्पेसिफिकली फॉर कंजर्विंग टाइगर्स. तो ये जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, ये बनाई गई थी इन the lieu of Project Tiger that was launched in 1973. उसकी implementation के लिए ये अथॉरिटी बनाई गई थी और इस अथॉरिटी को स्टैट्यूटरी स्टेटस देने के लिए इसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर इंक्लूडेड किया गया था. बट अगर हम प्रोटेक्टेड एरियाज की बात करें तो इस एक्ट के अंदर 4 मेन प्रोटेक्टेड एरियाज इंक्लूड होते हैं. वो कौन से हैं? नेशनल पार्क्स, कंजर्वेशन रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड कम्युनिटी रिजर्व्स. तो ये 4 मेन प्रोटेक्टेड एरियाज इस एक्ट का पार्ट है. सबसे पहले देख लेते हैं नेशनल पार्क्स. सबसे पहले नेशनल पार्क्स वर आल्सो इंक्लूडेड इन IUCN कैटेगरी 2. ये जो नेशनल पार्क्स हैं इनको नोटिफाई करती है स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट. एक बार नोटिफाई होने के बाद इनमें कोई भी अगर बाउंड्री में चेंजेस कर रहे हैं तो वो कौन कर सकता है? वो कर सकता है नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ. सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो है कि इन नेशनल पार्क्स में बिल्कुल भी ह्यूमन एक्टिविटीज परमिट नहीं होती, लाइक पोचिंग, हंटिंग, ग्रेजिंग, कल्टिवेशन. तो ऐसी कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी या ह्यूमन इंटरफेरेंस इन नेशनल पार्क्स में अलाउड नहीं होती. थर्ड चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये कि इट इज बेसिकली एन इन सिटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन, यानी जो स्पीशीज है हम उसे नेचुरल एनवायरनमेंट, उसके नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्ट कर रहे हैं. फोर्थ चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये कि इंडिया का जो फर्स्ट नेशनल पार्क था वो कौन सा था? दैट वाज बेसिकली द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और द हेलीज नेशनल पार्क एज इट वाज कॉल्ड देन इन 1935. 1972 में जब ये एक्ट लॉन्च करी तब इंडिया में बेसिकली 5 ऐसे नेशनल पार्क थे
जो कि इस एक्ट से पहले थे। लेकिन इस एक्ट के आने के बाद जो नेशनल पार्क्स हैं उनका नंबर हो गया है अराउंड 104। एमपी की अगर हम बात करें, एमपी में मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स हैं, दैट कंसिस्ट ऑफ 10 नेशनल पार्क्स। तो फ्रेंड्स, नेशनल पार्क्स जो होते हैं वो टेरेस्ट्रियल नेशनल पार्क्स भी हो सकते हैं, मरीन नेशनल पार्क्स भी हो सकते हैं। इंडिया की अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ का फिजिकल एनवायरनमेंट जो है, इकोसिस्टम जो है वो बहुत ही रिच है एनवायरनमेंट, तो यहाँ पे दोनों ही तरह के नेशनल पार्क्स मिलते हैं। टेरेस्ट्रियल नेशनल पार्क्स यहाँ पे ज्यादा हैं, अराउंड 100 टेरेस्ट्रियल नेशनल पार्क्स हैं, और मरीन नेशनल पार्क्स आर अराउंड 5 और 6 मरीन नेशनल पार्क्स आर देयर इन इंडिया। मरीन नेशनल पार्क्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला मरीन नेशनल पार्क जो डिक्लेयर हुआ था वो हुआ था मरीन नेशनल पार्क ऑफ गल्फ ऑफ कच्छ इन 1980। उसके बाद 4 और मरीन नेशनल पार्क्स अभी डिक्लेयर हुए हैं। वो कौन कौन से हैं? महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, यहाँ पे की स्पीशीज कौन सी है? सी ड्यूगोंग, सी काउ या ड्यूगोंग। उसके अलावा कौन सी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है? मालवीन मरीन नेशनल पार्क इन महाराष्ट्र, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क इन तमिलनाडु एंड द भीतरकनिका नेशनल पार्क इन उड़ीसा। भीतरकनिका नेशनल पार्क जो है वो एक इम्पोर्टेंट वेटलैंड भी है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है भीतरकनिका नेशनल पार्क। और यहाँ पे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल भी मिलता है, जो कि एक इंडेंजर्ड और या थ्रेटन्ड स्पीशीज है। तो ऐसे नेशनल पार्क्स जहाँ पे कोई थ्रेटन्ड स्पीशीज मिलती है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उनकी लोकेशन हमें स्पेसिफिकली याद रखनी चाहिए। अब क्योंकि हम सारे 100 के 100 नेशनल पार्क्स नहीं याद रख सकते, तो हम स्टेट वाइज कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स देख लेते हैं। प्लस आपको याद रखना है कि जब भी आप किसी स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं, स्टेट लेवल पे कोई एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको इन इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स के अलावा उस स्टेट के स्पेसिफिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स को भी याद रखना है और उनकी की स्पीशीज को देख कर जाना है। सो लेट अस स्टार्ट विच आर द इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स। सबसे पहले जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में जो है 4 मेन इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं, वो कौन कौन से हैं? दच्चिगम नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क और सलीम अली नेशनल पार्क। सलीम अली नेशनल पार्क जो है, इट इज ऑन द नेम ऑफ द फेमस ऑर्थोनोलॉजिस्ट सलीम अली। उसके अलावा अगर हम दशिगम की बात करें, जो दशिगम नेशनल पार्क है, वहां पे की स्पीशीज कौन सी है? वो है कश्मीरी स्टैग, जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज है। उसके अलावा अगर हम हेमिस हाई ऑल्टीट्यूड नेशनल पार्क की बात करें, तो वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे स्नो लेपर्ड मिलता है, जिसके ऊपर एक स्पेशल प्रोजेक्ट भी चला गया है, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड फॉर इट्स कंजर्वेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में 2 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं, वो कौन कौन से हैं? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, दैट इज ऑल्सो यूनेस्को हेरिटेज साइट, एंड द इंदरकिला नेशनल पार्क। थर्ड इंपॉर्टेंट नेक्स्ट हम बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स नहीं है, बट फिर भी अबोहर नेशनल पार्क थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा में 2 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कालेसर नेशनल पार्क। फिर हम बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स कौन कौन से हैं? सरिस्का नेशनल पार्क, जो कि एक इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व भी है। रणथंभौर नेशनल पार्क, वो भी एक टाइगर रिजर्व है। उसके अलावा क्योलाडो खाना नेशनल पार्क, जो कि एक बर्ड सेंचुरी है और एक इंपॉर्टेंट रामसर साइट भी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कौन सा है? वो है गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिस इज द ओनली साइट इन इंडिया वेयर एशियाटिक लायन इज फाउंड। तो क्योंकि यहाँ पे दिस इज द ओनली साइट जहाँ पे एशियाटिक लायन फाइंड किया जाता है इंडिया में, तो ये एक इंपॉर्टेंट साइट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स हैं इंडिया में, वो कौन कौन से हैं? वन विहार, माधव नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क। ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स ऑफ एमपी। नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं? उत्तर प्रदेश में इंपॉर्टेंट है चंबल नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा नेशनल पार्क। नेक्स्ट अगर हम बात करें उत्तराखंड की, उत्तराखंड में जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो कौन सा है? दुधवा नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिस वाज द फर्स्ट नेशनल पार्क टू बी डेजिग्नेटेड इन इंडिया। उसके बाद हम बात करते हैं बिहार की। बिहार में जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो कौन सा है? वाल्मीकि नेशनल पार्क। नेक्स्ट हम बात करते हैं झारखंड की। झारखंड में 2 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं, बेतला नेशनल पार्क एंड दी पालीमाऊ नेशनल पार्क। पालीमाऊ नेशनल पार्क जो है वो एक टाइगर रिजर्व भी है, तो इसलिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल की। इसके अंदर सुंदरबन नेशनल पार्क इंक्लूडेड है, जहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर फाइंड किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा में 2 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं, सिमलीपाल नेशनल पार्क एंड उषा कोटी नेशनल पार्क। इसके अलावा हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, यहाँ पे एक मरीन नेशनल पार्क भी है, दैट इज द भीतरकनिका नेशनल पार्क। नेक्स्ट हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं, दैट इज द कंगर घाटी नेशनल पार्क एंड द
कंकर घाटी नेशनल पार्क एंड दी इंद्रावती नेशनल पार्क। तो ये छत्तीसगढ़ के 2 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स है। नेक्स्ट हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कौन सा है? मेलघाट नेशनल पार्क एंड तदोबा नेशनल पार्क। उसके अलावा जो संजय गांधी नेशनल पार्क है, दैट इज द सेम नेम इज आल्सो फाउंड इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भी एक संजय गांधी नेशनल पार्क है। ऑल्सो यू नीड टू रिमेंबर दैट कि ऐसा भी हो सकता है कि एक नेशनल पार्क 2 स्टेट्स में लाई करे। फॉर एग्जाम्पल इन दिस पेंच नेशनल पार्क, जो पेंच नेशनल पार्क है वो दोनों मध्य प्रदेश में भी है और कुछ हिस्सा इसका महाराष्ट्र में भी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गोवा की। यहाँ पे सिर्फ एक नेशनल पार्क मिलता है, वो कौन सा है? वो है भगवान महावीर नेशनल पार्क। नेक्स्ट हम बात करते हैं कर्नाटका की। कर्नाटका इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ वी लुक एट इट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ नेशनल पार्क, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स मिलते हैं और यहाँ पे ऐसे नेशनल पार्क्स मिलते हैं जिनके अंदर बहुत ही स्पेसिफिक इंडेंजर्ड स्पीशीज मिलती है, लाइक नीलगिरी ताहर, लॉयन टेल मैकॉक। तो इसलिए भी ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो कौन कौन से मेन नेशनल पार्क्स हैं? डांडेली नेशनल पार्क, अंशी नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, नगरहोल, बानरघाटा नेशनल पार्क। ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं कर्नाटका के। नेक्स्ट लेट अस लुक एट केरला। केरला में 2 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं, एराविकुलम नेशनल पार्क एंड पेरियार नेशनल पार्क। उसके बाद हम बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स कौन से हैं? पॉइंट कैलिमेर नेशनल पार्क एंड मुडुमंथुरई नेशनल पार्क। आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? नागार्जुन सागर नेशनल पार्क। उसके अलावा देयर इज आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें उसके अलावा उसमें कौन कौन से नेशनल पार्क है? पापीकोंडा नेशनल पार्क, ये सबसे सेकेंड लार्जेस्ट नेशनल पार्क है आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में असम में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क्स हैं, which has Manas National Park, Nameri National Park, Kaziranga National Park. Kaziranga National Park and Manas National Park contains one horned rhino, तो इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मणिपुर की। यहाँ पे कौन सा है? केपजुल लामजौन नेशनल पार्क, जो कि एक इंपॉर्टेंट साइट है, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में भी इंक्लूडेड है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में भी एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, दैट इज इंगटांकी नेशनल पार्क। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो वहां पे 2 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, दैट इज द मोलिंग नेशनल पार्क एंड नामदफा नेशनल पार्क। नामदफा नेशनल पार्क कंसिस्ट ऑफ द स्पीशीज दैट इज नामदफा फ्लाइंग स्क्विरल। तो यहाँ क्योंकि ये यहाँ की एक एंडेमिक स्पीशीज है, इंडेंजर्ड स्पीशीज है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ये थे कि कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स। Next important wildlife protected area that has been included under this act is wildlife sanctuaries. So wildlife sanctuaries are very similar to national parks, but there is a lot more human interactions are allowed in these wildlife sanctuaries. A safe amount of hunting, predation, competition is allowed in this, but a safe environment is still available to these स्पीशीज। तो इसके अंदर जो भी अगर कोई जो ग्रेजिंग होती है वो रेगुलेटेड और कंट्रोल्ड होती है, और चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की परमिशन से हम यहाँ पे हंटिंग भी कर सकते हैं। सेकेंड चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि जनरली कोई भी नेशनल पार्क जब बनता है उससे पहले वो जनरली एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है। तो विद टाइम जैसे जैसे उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की इंपॉर्टेंस बढ़ती है या वहाँ पे थ्रेट बढ़ती है, तो उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हम प्रमोट कर सकते हैं नेशनल पार्क। इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को नोटिफाई कौन करता है? इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को नोटिफाई करती है स्टेट गवर्नमेंट। और अगर इनकी बाउंड्रीज को चेंज करना है पहले के अकॉर्डिंगली, या कोई नई बाउंड्रीज या नए एनिमल स्पीशीज इनके अंदर इंक्लूड करना है या डिसअप्रूव करना है इनको, तो वो कौन करता है? वो करता है नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया में अभी करंटली 545 के अराउंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, एंड दे कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 3.62% ऑफ इंडिया। सो ये है कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो हमें पता होनी चाहिए। बट क्योंकि हम सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नहीं पढ़ सके, तो आपको जनरली उन्हीं पे फोकस करना चाहिए जो फ्रीक्वेंटली अभी अभी न्यूज में रही हैं, या ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो कि एक बायोस्फीयर रिजर्व भी हैं या एक रामसर साइट भी डिक्लेयर्ड है। तो आप उन पे ज्यादा फोकस करना जो कि एक बायोस्फीयर रिजर्व या एक वेटलैंड साइट भी डिक्लेयर्ड है। फॉर एग्जाम्पल बक्सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन वेस्ट बंगाल एंड नल सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन गुजरात। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो हैं, या ये बक्सा एक टाइगर रिजर्व है तो इसलिए भी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरह इंपॉर्टेंट हो जाती है। सिमिलरली जो नल सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो एक वेटलैंड साइट भी है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। सो ऐसी वेटलैंड्स, ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो कि एक डेजिग्नेटेड यूनेस्को साइट है या एक डेजिग्नेटेड रामसर साइट है, वो हमें पता होनी चाहिए। The next important protected area that has been designated under Wildlife Protection Act is Community Reserve. So this was included via amendment in 2002. उससे पहले Wildlife Protection Act में ये included नहीं था. These areas are basically designated by the state government
एंड इंक्लूड द कम्युनिटी लैंड्स, यानी जो प्राइवेट लैंड्स होती हैं या कम्युनिटी लैंड्स होती हैं, जो कम्युनिटी उसे वॉलंटरली या आफ्टर कंसल्टेशन या एग्रीमेंट्स उसको वॉलंटरी देना चाहे, वो कम्युनिटी रिजर्व्स का पार्ट होती है। सो इसमें आपको एक चीज याद रखनी है कि अभी हमने पढ़ा था जो नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं उनमें जो गवर्नमेंट है वो डिक्टेट करती है रूल्स, और जो राइट्स होते हैं, ह्यूमन राइट्स होते हैं रिलेटेड टू ग्रेजिंग, लैंड राइट्स, वो जो है वो इतने हद तक कंजर्व नहीं रहते एंड दे आर टेकन अवे। बट लेकिन इन अगर हम कम्युनिटी रिजर्व्स की बात करें तो यहाँ पे लोकल ट्रेडिशंस, कल्चर, प्रैक्टिसेस, ह्यूमन राइट्स, दे रिमेन देयर। इनकी जो भी मेंटेनेंस होता है वो कौन करता है? कम्युनिटी खुद करती है बाय फॉर्मिंग अ कम्युनिटी रिजर्व मैनेजमेंट कमिटी। सो अगर इनमें कोई भी चेंज करना है इनके लैंड यूज पैटर्न में या इनकी प्रैक्टिसेस में, तो वो कौन डिसाइड करेगा? वो डिसाइड करेगी कम्युनिटी रिजर्व मैनेजमेंट कमिटी विद द अप्रूवल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ डेजिग्नेटेड एरिया अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि है कंजर्वेशन रिजर्व्स। तो कंजर्वेशन रिजर्व्स आर वेरी मच सिमिलर टू कम्युनिटी रिजर्व्स, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या होता है? इनमें डिफरेंस ये होता है कि जो कंजर्वेशन रिजर्व्स होती हैं ये गवर्नमेंट लैंड्स होती हैं, दीज आर नॉट ओन्ड बाय कम्युनिटी और प्राइवेट इंडिविजुअल्स। तो क्योंकि ये जो एरिया होता है दिस इज अ पार्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, तो इन्हें कंजर्वेशन रिजर्व्स कहते हैं। प्लस ये जनरली जो एरिया होता है दैट इज एडजेसेंट टू अ नेशनल पार्क और सेंचुरीज, तो यानी जो आउटर लिमिट्स है नेशनल पार्क्स की या सेंचुरीज की, उसको हम जनरली डिक्लेयर कर देते हैं कंजर्वेशन रिजर्व्स, ताकि एक ट्रांजिशन जोन बन सके और वहां पे भी एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट बना रहे। इसकी हम मेंटेनेंस करते हैं थ्रू कंजर्वेशन रिजर्व्स एंड मैनेजमेंट कमिटी। सो सबसे पहला जो कंजर्वेशन रिजर्व इंडिया में बना था वो था तिरुपति मरुथुर कंजर्वेशन रिजर्व इन तमिलनाडु। ये बनाया था विलेजर्स ने टू प्रोटेक्ट द नेस्टिंग ऑफ द बर्ड्स इन देयर विलेज। So friends, these were the protected areas designated by Wildlife Protection Act of 1972. जब भी आप किसी स्टेट का एग्जाम रखें तो प्लीज इन लिस्ट को अपने अकॉर्डिंगली रिवाइज करते रहें, उस स्टेट स्पेसिफिक कम्युनिटी रिजर्व्स, कंजर्वेशन रिजर्व्स को जरूर दोबारा देख लें। So let us start with some questions. The first question is, in which one of the following categories of protected areas in India are local people not allowed to collect and use the biomass? यानी जहां पे लोकल पीपल की इंटरेक्शन नहीं अलाउड, जहां पे उनकी राइट्स कंजर्व नहीं है, वो एरिया हमें बताना है। ए बायोस्फीयर रिजर्व्स, बी नेशनल पार्क, सी वेटलैंड्स अंडर रामसर कन्वेंशन एंड डी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। सो फ्रेंड्स, जहां पे बिल्कुल भी लोकल पीपल्स की इंटरेक्शन नहीं अलाउड, वो कौन सा एरिया है? वो है नेशनल पार्क, दैट इज बी। बाकी सभी जगह पे बायोस्फीयर रिजर्व्स हो, वेटलैंड्स हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो, वहां पे रिस्ट्रिक्टेड या फिर कंप्लीट लोकल पीपल की इंटरेक्शन अलाउड होती है। Next question, the most important strategy for the conservation of biodiversity together with the traditional human life is the establishment of। ये पूछा गया था प्रीलिम्स 2014 में, यानी हमें एक ऐसी स्ट्रैटेजी बतानी है जहां पे बायोडाइवर्सिटी और ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ इकट्ठे प्रिजर्व की जाती है। ए बायोस्फीयर रिजर्व्स, बी बोटानिकल गार्डन, सी नेशनल पार्क्स एंड डी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। सो इसका आंसर होगा ए बायोस्फीयर रिजर्व्स। क्यों? क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व्स एक IUCN 5 कैटेगरी है जहां पे नेचुरल लैंडस्केप, सीस्केप कंजर्व होता है और वहां का ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ भी कंजर्व रहता है। Next question, this was asked in prelims 2010. Consider the following statements. First, the boundaries of national park are defined by legislation. Second, a biosphere reserve is declared to conserve a few specific species of flora and fauna. Third, in a wildlife sanctuary, limited biotic interference is permitted. तो अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो yes, national parks are defined by a legislation that can be either given by state government or central government, so this is right. सेकेंड स्टेटमेंट, अ बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर्ड टू कंजर्व स्पेसिफिक स्पीशीज, ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो बायोस्फीयर रिजर्व्स होता है वो एक स्पीशीज स्पेसिफिक डिक्लेरेशन नहीं होती, बल्कि एक लैंडस्केप या सीस्केप बेस्ड कंप्लीट एनवायरनमेंट बेस्ड लेजिस्लेशन होती है, तो दिस इज इनकरेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट ये सही है, क्यों? क्योंकि लिमिटेड बायोटिक इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमंस आर परमिटेड इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, सो दिस इज आल्सो करेक्ट। सो द आंसर वुड बी सी, दैट इज 1 and 3 only. The next question, which of the following national parks is unique in being swamped with floating vegetations that support a rich biodiversity? यानी हमें एक ऐसा नेशनल पार्क बताना है जहां पे स्वैम्प और फ्लोटिंग वेजिटेशन है। ए भितरकनिका नेशनल पार्क, बी केपजुल लामजाओ नेशनल पार्क, सी क्योलाडो भाना नेशनल पार्क एंड डी सुल्तानपुर नेशनल पार्क। सो आपको इस नेशनल पार्क में हमने अभी पढ़ा था जब हम नेशनल पार्क्स कर रहे थे कि एक ही ऐसा नेशनल पार्क है जिसे फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी कहते हैं, एंड दैट इज ऑल्सो मोन्ट्रिक साइट, दैट इज दी बी केपजुल लामजाओ नेशनल पार्क। यहाँ पे फुमडीज मिलते हैं, सो द आंसर वुड बी बी, दैट इज केपजुल लामजाओ नेशनल पार्क। The next question, consider the following pairs.
तो हमें दो पेयर्स दिए हैं, एक तो प्रोटेक्टेड एरिया प्लस हमें बताना है कि वहां पे कौन सी स्पीशीज मिलती है. सो द फर्स्ट नेशनल पार्क दैट इज द भीतरकनिका नेशनल पार्क दैट इज फाउंड इन ओडिशा. तो दिस इज नोन फॉर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल. Second is Desert National Park of Rajasthan. This is known for Great Indian Bustard. And third is Iravikulam National Park of Kerala. That is known as Hulak Gibbon. तो हमें बताना है कि इनमें से कौन से पेयर्स करेक्टली मैच हैं. ये पूछा गया था प्रीलिम्स 2010 में. So friends, in these three options, first and second are correctly matched and the third is incorrect. Why? Because जो भीतरकनिका नेशनल पार्क है वहां पे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल मिलता है, और जो राजस्थान और जो गुजरात रीजन वाला डेजर्ट नेशनल पार्क है यहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मिलता है. लेकिन जो हुलॉक गिबन है दैट इज द ओनली एप स्पीशीज फाउंड इन इंडिया, वो हमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिलता है, ना कि केरला नेशनल पार्क में. यहाँ पे केरला इराविकुलम नेशनल पार्क जो है इट इज मोर फेमस फॉर एलिफेंट्स. तो यहाँ पे गिबन नहीं मिलता, गिबन सिर्फ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिलता है. सो द आंसर वुड बी बी, दैट इज 1 and 2 ओनली. The next question. Two important rivers, one with its source in Jharkhand and well known by a different name in Odisha and other with a source in Odisha, merge at a place only at a short distance from coast of Bay of Bengal before flowing into the sea. This is an important site for wildlife and biodiversity and a protected area. Which one of the following could it be? So हमें उड़ीसा में एक ऐसी साइट बतानी है जो कि एक प्रोटेक्टेड एरिया है फॉर वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी. सो अगर हम इन सब में से बात करें तो सिर्फ ए या डी ऑप्शन ही हो सकता है. क्यों? क्योंकि जो चंदीपुर ऑन सी है और गोपालपुर ऑन सी है वो एक प्रोटेक्टेड एरिया नहीं है. अब इनमें से ऐसी साइट जहां पे रिवर्स का कॉन्फ्लुएंस होता है वो कौन सी है? वो है ए भीतरकनिका, जहां पे ऋषिकुल्या रिवर और देवी रिवर का कॉन्फ्लुएंस होता है. सो द आंसर वुड बी ए. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. The first marine sanctuary in India within its bounds containing coral reefs, mollusca, dolphins, tortoise and various kinds of seabirds has been established in A. Sundarbans, B. Chilika Lake, C. Gulf of Kutch and D. Lakshadweep. This was asked in prelims of 1999. तो यहाँ पे आपको अगर ये क्वेश्चन आंसर करना है, दिस इज अ completely fact based question. Don't try to guess such a question because in guessing such a question on the basis of species can be a bit tricky, because such questions are mainly to confuse you and lure you to answer such questions and you may end up getting a negative score. So we already studied that the first marine sanctuary that was declared in India was in 1980, that was Gulf of Kutch. So the answer here would be C. Now we have already completed with the first part of national efforts, that was the efforts undertaken under Wildlife Protection Act 1972. Now we'll be proceeding with the other efforts. First major effort was under Project Tiger, that is the tiger reserves. So the tiger reserves are notified on the recommendation of NTCA, which is a statutory body that is notified under Wildlife Protection Act, and this body on the basis of government suggestions notifies tiger reserves. So in 1973, 9 tiger reserves were created and today there are around 50 tiger reserves. These tiger reserves are basically formed on the foundation of co-buffer strategy. तो इस strategy में क्या होता है कि एक टाइगर रिजर्व्स के अंदर दो मेन जोन्स हैं, एक है कोर जोन और एक है उसके अराउंड का बफर जोन. जैसे कि हमने बायोस्फीयर में पढ़ा था उसमें 3 जोन थे, कोर, बफर एंड ट्रांजिशन, दैट इज CBT. लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 ही जोन है, कोर और बफर. तो कोर वो जोन है जो कि कंप्लीटली फ्री रहता है किसी भी तरीके की बायोटिक इंटरफेरेंस से, और यहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती. लेकिन अगर हम बफर जोन की बात करें तो यहाँ पे कुछ पेरिफेरल जोन है कोर के अराउंड, सप्लीमेंट्री एरिया है जहाँ पे को एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज भी होती है. सो इसकी लिमिट्स कौन डिसाइड करता है? इसकी लिमिट जो होती है टाइगर रिजर्व्स के बफर जोन की, वो डिसाइड होती है ग्राम सभा और एक एक्सपर्ट कमेटी की रिकमेंडेशंस पे. So let us now study the tiger reserves. तो ये जो टाइगर रिजर्व जब आप पढ़ेंगे तो आपको बेसिकली दो चीज, इसमें बस एक ही चीज पता होनी चाहिए, वो है उसकी लोकेशन. जनरली तो वो सिर्फ स्टेट ही पूछते हैं, बट इट माइट बी पॉसिबल कि वहां का वो कोई अगर इंपॉर्टेंट फीचर है उस टाइगर रिजर्व के अंदर, कोई रिवर है, कोई माउंटेन पीक है, तो वो भी वो पूछ सकते हैं. लाइक मिजोरम में डाम्पा टाइगर रिजर्व के पास ही ब्लू माउंटेन्स हैं. सिमिलरली सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट्स. और रत्नपुर टाइगर रिजर्व के पास से भी इंपॉर्टेंट रिवर गुजरती है, दैट इज द चंबल रिवर. सो अगर कोई इंपॉर्टेंट रिवर है यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट माउंटेन है तो वो भी आपको पता होना चाहिए. सो लेट अस लुक एट दीस टाइगर रिजर्व्स वन बाय वन. सबसे पहले अगर हम नॉर्दर्न स्टेट से बात करें तो उत्तराखंड में कौन सी टाइगर रिजर्व है? वो है कॉर्बेट नेशनल पार्क या कॉर्बेट टाइगर रिजर्व. लेट अस नाउ जो अगर इसके बाद अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पे कौन कौन सी है? वहां पे 2 इंपॉर्टेंट है, दैट इज दुधवा
एंड द पीलीभीत टाइगर रिजर्व. नाउ इफ वी गो इन सेंट्रल इंडिया तो वहां पे कौन कौन सी है? एमपी में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व्स हैं. इफ वी लुक इन टर्म्स ऑफ नंबर तो वहां पे है पन्ना टाइगर रिजर्व, संजय धुबरी, बांधवगढ़, सतपुरा, पेंच. ये सारी कहाँ पे है? एमपी में. अगर हम राजस्थान की बात करें तो वहां पे कौन कौन सी है? सारिस्का, रणथंभौर एंड मुकुंदरा. तो ये तीन जो है राजस्थान की टाइगर रिजर्व्स हैं. महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पे कौन कौन सी है? मेलघाट, पेंच, बोर, तदोबा, अंधेरी एंड सह्याद्री. तो ये है महाराष्ट्र की टाइगर रिजर्व्स. उसके बाद अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां पे कौन कौन सी है? अचनाकर, अमरकंटक, कान्हा, नवेगांव, नसगेरी एंड उदंती सितंदी. तो ये जो अचनाकर अमरकंटक की टाइगर रिजर्व है, दिस इज ऑल्सो अ बायोस्फीयर रिजर्व प्लस दिस इज अ इंटरस्टेट टाइगर रिजर्व. इसका कुछ पार्ट एमपी में है और कुछ पार्ट छत्तीसगढ़ में है. तो इसलिए ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरस्टेट कई बार वो पूछ लेते हैं कि ऐसी कौन सी टाइगर रिजर्व है जो दो स्टेट्स में आ रही है, जो दोनों एमपी और छत्तीसगढ़ से पास कर रही है. So the answer would be अचनाकर अमरकंटक टाइगर रिजर्व्स. सिमिलरली अगर हम उड़ीसा की तरफ देखें तो कौन कौन सी टाइगर रिजर्व्स हैं? उसमें दो टाइगर रिजर्व्स हैं, सिमलीपाल एंड सतकोशिया. झारखंड की बात करें तो वहां पे एक इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है, दैट इज द पलमाओ टाइगर रिजर्व. वेस्ट बंगाल की बात करें तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है. वन इज अराउंड द दार्जिलिंग एरिया, दैट इज द बक्सा टाइगर रिजर्व, एंड द अदर इज अराउंड कोलकाता, दैट इज द सुंदरबन टाइगर रिजर्व. वी हैव ऑलरेडी सीन दैट this area is also a national park, but this does not contain a Ramsar wetland site even though mangroves are there in this area. अब असम, अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो वहां पे असम में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व्स हैं, दैट इज द मानस टाइगर रिजर्व, नामेरी टाइगर रिजर्व एंड काजीरंगा टाइगर रिजर्व. अरुणाचल प्रदेश में भी देयर आर टू टाइगर रिजर्व, दैट इज द पक्के टाइगर रिजर्व एंड द नामदफा टाइगर रिजर्व्स. पक्के टाइगर रिजर्व वाज रिसेंटली awarded it's for its conservation projects by UNEP. Now in Mizoram there is a tiger reserve, that is the Dampa Tiger Reserve. Now let us proceed to the southern states. यहाँ पे कर्नाटका में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व्स हैं, which includes Dandeli Anshi Tiger Reserve, Bhadra Tiger Reserve, Nagarhole, Bandipur and Satyamangalam. Satyamangalam we have already discussed, that is it is on the confluence of two states, that is Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. तो इसलिए एक इंटरस्टेट टाइगर रिजर्व है. केरला में कौन कौन सी टाइगर रिजर्व्स है? प्राम्बिकुलम एंड पेरियार. सिमिलरली तमिलनाडु में दो टाइगर रिजर्व्स हैं इंपॉर्टेंट, वो है मुडुमलाई एंड अन्नामलाई. और लास्ट हम अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहां पे कौन सी है? कवर टाइगर रिजर्व. So these were the 50 tiger reserves that were important. Next important area for protection is sacred groves. तो ये क्या होते हैं? Sacred groves are the areas which are important for tribal deities. यानी वहां पे क्या होगा कि कुछ वहां के animals को या वहां के कुछ plants को they are designated as folk deities. तो वहां कोई लोग उन प्लांट्स को पूजते हैं, उनको एज ऑस्पिशियस मानते हैं, स्पिरिचुअल पावर मानते हैं. तो दे आर वेरी कंजर्व्ड काइंड ऑफ एरियाज. यहाँ पे लेकिन डिग्री ऑफ सैंक्टिटी वेरीज अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस. तो कुछ एरियाज में हो सकता है कि वहां पे अगर कुछ भी कोई फ्रूट गिर जाए, कोई लीफ उड़ जाए, तो दे आर नॉट अलाउड टू टच इट. बट इन सम एरियाज इट इज अलाउड टू collect the fallen trees and fallen leaves, but in some areas this is not. If we look at the Garo and Khasi tribes in northeastern India, they completely prohibit any kind of human interference. But in other areas like Gonds and central India, they do allow some kinds of fallen parts to be collected, but prohibit any kind of cutting of tree. So the different tribes have different traditions, you can see that. Now the sacred groves are generally classified onto two bases, that is the traditional sacred groves and the temple groves. जो traditional sacred groves है वो basically एक elementary various deities वहाँ पे reside करती हैं, उस basis पे उनको एक spiritual god की तरह treat किया जाता है. But temple groves के around there is a particular temple that is created around these groves and they are conserved. So the difference is basically यहाँ पे कोई special temple नहीं create किया गया, लेकिन temple groves में एक specific temple create किया गया है. Now, what are the main sacred groves? There are a lot of sacred groves in India. अगर हम नंबर के टर्म्स में बात करें तो सबसे ज्यादा sacred groves कहाँ पे है? सबसे ज्यादा sacred groves है महाराष्ट्र में. इनके लोकल नाम क्या है इन sacred groves के? देवराय, देवराघाटी, देवगुडी. तो sometimes these local names can also help you just to identify what area is it और वहाँ के sacred groves क्या है. So do go through this list of local areas. So अभी हमने दो एफर्ट्स पढ़े, दैट इज सेक्रेड ग्रूव्स और प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर टाइगर रिजर्व्स. इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए, वो है एक और स्पीशीज स्पेसिफिक एफर्ट जो है रिलेटेड टू वल्चर्स. इससे पहले हमने एलिफेंट्स में भी एक कंजर्वेशन एफर्ट पढ़ा था, माइक साइट्स, जो कि एक एलिफेंट स्पेसिफिक
एफर्ट था। अब हम पढ़ेंगे वल्चर स्पेसिफिक एफर्ट जो कि वल्चर कंजर्वेशन जोन्स हैं। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में 9 मेन स्पीशीज ऑफ वल्चर्स पाई जाती हैं। उसमें से कुछ ऐसी भी स्पीशीज हैं जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, लाइक व्हाइट बैक वल्चर, स्लेंडर बिल्ड वल्चर और इंडियन ग्रिफिन वल्चर। तो ये तीनों जो है आउट ऑफ द 9 स्पीशीज आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड। इनकी कंजर्वेशन की नेसेसिटी पड़ी तब क्योंकि इनका नंबर सडनली डिक्लाइन करने गया। लेट 1990s में क्या हुआ कि जब स्टडीज कंडक्ट करी गई अराउंड इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज इन नेपाल एंड पाकिस्तान, इनका नंबर बहुत ज्यादा डिक्लाइन करने गया। द रीजन वॉज फाउंड ड्यू टू अ पेन किलर ड्रग नोन एज डाइक्लोफिनैक। तो क्योंकि ये डाइक्लोफिनैक जो ड्रग था वो काउज वगैरह में बहुत ज्यादा दिया जाता है एज ए एंटीबायोटिक, तो ये जो एज ए रेजिड्यू था, जब इन वल्चर्स ये वो काउस वगैरह को खाती थी तो उनके अंदर ये चला जाता था। इस ड्रग के कारण वल्चर्स की किडनी फेलियर स्टार्ट हो गया, रीनल प्रॉब्लम्स उनको आने लगी, तो इसके कारण उनका नंबर जो था वो बहुत ज्यादा डिक्रीज करने लग गया। इसी के कारण गवर्नमेंट ने वल्चर रिकवरी प्लान स्टार्ट किया 2006 के अंडर। तो उसमें उन्होंने 3 मेजर एरिया रीजंस के कारण या 3 मेजर स्ट्रैटेजीज फॉलो करी जिससे वो वल्चर्स को कंजर्व कर सके थे। पहला था कि बैनिंग ऑफ डाइक्लोफिनैक, second is finding of alternate drugs for instead of diclofenac, and third was starting a conservation breeding program for vultures. So let us look at the in situ and the ex situ conservation techniques that were taken in regard to vulture conservation. सबसे पहले बात करते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन की। तो इसके रिगार्ड इसके कंसल्ट में इंडिया ने वल्चर ब्रीडिंग सेंटर्स को बनाना स्टार्ट किया। सबसे बड़ा वल्चर रिसर्च फैसिलिटी बनी पिंजौर हरियाणा में। सो इट इज द एशियाज फर्स्ट वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर दैट वाज फाउंड इन 2005। इसके अलावा इंडिया ने 4 और ब्रीडिंग सेंटर्स भी बनाए हैं एट रानी गुवाहाटी इन असम, पिंजौर, बक्सा एंड भोपाल। 4 अदर ब्रीडिंग सेंटर्स आर इन प्रोसेस ऑफ बीइंग फॉर्म्ड एंड अभी ये बने नहीं है, ये बनाए जा रहे हैं सेंट्रल जू अथॉरिटी के द्वारा। दीज आर इन जूनागढ़ गुजरात, नंदनकना इन ओडिशा, हैदराबाद इन तेलंगाना एंड म्यूटा इन रांची। तो ये 4 अभी बनने हैं, अभी कंप्लीटली बने नहीं है। इसके अलावा जो एक्सटर्नल एक एक्सी2 और मेथड फॉलो किया गया है वल्चर कंजर्वेशन के, वो है फॉर्मेशन ऑफ वल्चर रेस्टोरेंट्स। तो पंजाब और महाराष्ट्र में ये यूनिक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था जहां पे क्या होता था कि स्पेशल टेबल्स रखे जाते थे जहां पे कि वल्चर्स को डेड मीट वगैरह दिया जाता था फ्री ऑफ डाइक्लोफिनैक एंड अदर ड्रग्स सच ड्रग्स। तो उनको एक ऐसा फ्री सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन दिया जाता था ताकि उनका नंबर डिक्रीज ना करे और उनको एक सेफ सोर्स ऑफ फूड मिलता रहे। तो ऐसे एरियाज को हम कहते हैं वल्चर रेस्टोरेंट्स। Now let us talk about some in situ methods. तो in situ methods में सबसे फेमस मेथड है डिक्लेयरिंग वल्चर सेफ्टी जोन्स। तो ये जो वल्चर सेफ्टी जोन्स है, सिमिलर ऐसे वल्चर सेफ्टी जोन्स यूरोप और अफ्रीका में भी डिक्लेयर किए गए हैं, बट एशिया में सबसे ज्यादा डिक्लेयर किए हैं। तो इन वल्चर सेफ्टी जोन्स का टारगेट होता है कि 150 किलोमीटर का एक ऐसा रेडियस बनाया जाए जहां पे कि वल्चर्स को डाइक्लोफिनैक फ्री फूड मिल सके, हेल्दी फूड मिल सके और वो अपना नंबर प्रॉस्पर कर सके। सबसे पहला ऐसा जोन जो इंडिया में डिक्लेयर हुआ था वो था अराउंड जिम कॉर्बेट पार्क इन एंड दुधवा पार्क। तो एक ऐसी बेल्ट इन उत्तराखंड डिक्लेयर की गई जहां पे वल्चर सेफ्टी जोन जिसको डिक्लेयर किया गया। अदर 2 जोन्स आर स्टिल बीइंग फॉर्म्ड दैट आर इन डिब्रूगढ़ असम एंड छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे 2 अभी और बन रहे हैं ऐसे वल्चर सेफ्टी जोन, बट अभी बने नहीं है। सो आपको दीज आर द वल्चर सेफ्टी जोन्स। नाउ नेक्स्ट इनिशिएटिव की बात करते हैं जो कि है मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज। अब ये मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज वैसे तो IUCN के अंदर भी डिक्लेयर होते हैं, बट जनरली जब हम मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज की बात करते हैं तो हम नेशनल लेवल पे बात करते हैं। तो इन मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज की मेन एम होती है कि हम जो मरीन एनवायरनमेंट है, मरीन हैबिटेट है, उसकी स्पीशीज को, उसके कल्चर को कंजर्व कर सके। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में बहुत सारे मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, like Kuringa Island in Andhra Pradesh, Pulicat Lake, Gulf of Mannar in Tamil Nadu, Chorao Island in Goa, Gahirmatha River and Bhitarkanika in Odisha, जो कि ऑलिव रिडले टर्टल्स की कल्टीवेशन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, सुंदरबन इन लोथियन आइलैंड्स इन वेस्ट बंगाल। तो ये कुछ एरियाज जहां पे बहुत ज्यादा मरीन स्पीशीज हैं उन्हें मरीन प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर किया गया है। सो इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि इंडिया में कौन कौन से मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज है। मेन कौन कौन से हैं, गल्फ ऑफ कच्छ, खिलाजा इन गुजरात, मालवन मरीन नेशनल पार्क जो कि महाराष्ट्र में है, पित्ती बर्ड इन लक्षद्वीप आइलैंड्स, पॉइंट कैलमेर इन तमिलनाडु, पुलिकट लेक इन ऑन द बाउंड्री ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, कोरिंगा आइलैंड, गाहिरमाथा, सुंदरबंस, ये सारे क्या हैं, मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज। Now let us try to answer some questions. From the ecological point of view, which one of the following assumes importance
in being a good link between Eastern Ghats and Western Ghats. यानी हमें बताना है कि ऐसी कौन सी एरिया है इनमें से जो कि ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स के कॉन्फ्लुएंस पे रहता है. फर्स्ट इज सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, सेकंड इज नल्लामला फॉरेस्ट, सी इज इन नगरहोल नेशनल पार्क एंड डी इज शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व. तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको इन जगहों की लोकेशन पता होनी चाहिए. आपको चाहे एग्जैक्ट लोकेशन ना पता हो कि इनमें से कौन सा ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स के सेंटर में पड़ता है, लेकिन अगर आपको इन रिजर्व्स की या इन नेशनल पार्क्स की स्टेट पता है तो भी आप इसे गेस कर सकते हैं. So let us try to answer this. Satyamangalam Tiger Reserve है, it is basically on the boundary of Karnataka and Tamil Nadu. Nallamala Forest is in Andhra Pradesh. Nagarhole National Park is in Karnataka and Seshachalam Biosphere Reserve is in Andhra Pradesh. तो इनमें से एक ऐसी हमें ऐसी बायोस्फीयर रिजर्व चाहिए जो बेसिकली कॉन्फ्लुएंस ऑफ कर्नाटका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कॉन्फ्लुएंस में हो. सो इसमें से बेस्ट जो ऐसी टाइगर रिजर्व है जो कि कॉन्फ्लुएंस पे लाई करती है वो कौन सी है? ए, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व. सो आंसर वुड बी ए. The next question is consider the following protected areas. First Bandipur, second Bhitarkanika, C Manas and D Sundarbans. तो हमें बताना है कि इनमें से ऐसी कौन सी प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जो कि अभी टाइगर रिजर्व डिक्लेयर्ड हो गई हैं. तो इसका आंसर है बी, दैट इज 1, 3 and 4. क्यों? क्योंकि जो भीतरकनिका है वहां पे टाइगर्स नहीं मिलते हैं, वहां पे मेन स्पीशीज क्या है? सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल. सो आंसर होगा 1, 3 and 4. The next question, consider the following pairs. First, Dampa Tiger Reserve in Mizoram. Second, Gumti Wildlife Sanctuary in Sikkim. And third is Saramati Peak in Nagaland. तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर डायरेक्टली मैच्ड है. सो अभी हमने पढ़ा था कि जो डाम्पा टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पे है? मिजोरम में. सारामती पीक इज वन ऑफ द हाईएस्ट पीक्स ऑफ नागालैंड एंड गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन सिक्किम. तो ये तीनों ही ऑप्शन करेक्टली मैच्ड हैं, तो आंसर वुड बी डी, दैट इज 1, 2 and 3. So friends, this is the last question that you need to try this yourself. So the question says, in which one of the following states is Pakhui Wildlife Sanctuary located? This was asked in prelims 2018. A, Arunachal Pradesh, B, Manipur, C, Meghalaya and D, Nagaland. Try googling this. This is very simple. You will easily find it on net. Tell us your answer in the comment box. So friends, that's all for today. But before leaving, we'll like to give you small homework. Apart from the conservation efforts that we discussed today regarding national and international efforts, there are some more efforts that you need to study yourself. So you need to study these 4 efforts and find the major when was this effort started and what are the major areas that are declared under this effort. So the 4 efforts that you need to study are Project Elephant, Project Snow Leopard, Indian Crocodile Conservation Project and Operation Olivia. तो इन सारे ही प्रोजेक्ट्स को आपको स्टडी करना है, स्कीम्स को स्टडी करना है और पता करना है कि ये कब स्टार्ट हुई, किस स्पीशीज से रिलेटेड है, उन स्पीशीज का स्टेटस क्या है, कौन कौन सा एरिया इन प्रोजेक्ट के अंडर आता है, क्या इनके अंडर कोई स्पेसिफिक साइट्स डिक्लेयर की गई हैं इंडिया या नेशनल लेवल पे. तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको फाइंड करनी है और पढ़नी है. So friends, hope you like this video. We'll be back tomorrow with the next video.